Namaskar, dear learners. In today's English teaching section, I welcome you again in our interesting, very important lesson of class 10 English, Nelson Mandela, Long Walk to Freedom. So we will discuss the remaining part of the lesson, text with explanation, theme, and other things coming in this lesson. So let's begin again. Dear learners, welcome again. In the remaining part of the lesson, we have Chapter 2, Nelson Mandela, Long Walk to Freedom, written by Nelson Mandela himself, is an autobiography. Let's revise the theme again for the refreshment and for the previous knowledge of the topic. So, the lesson is all about his struggle for freedom, struggle for independence, equality and justice is the subject of the Nelson Mandela Long Walk to Freedom, a chapter in the English textbook. First slide for class 10. The chapter is a section taken from Nelson Mandela's autobiography, a politician and anti-apartheid revolutionary from South Africa. जो साउथ अफ्रीका से एक नए क्रांतिकारी ने जो जन्म लिया था, एंटी अपार्थाइड, इस रंग भेद, जाति भेद की जो प्रणाली, जो सिस्टम बनाया था वाइट सुप्रीमेसी ने, उसके खिलाफ लड़ने के लिए इन्होंने एएनसी जो ज्वाइन किया था, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को, इस पार्टी के थ्रू उन्होंने इलेक्शन लड़ा और उसमें जीत पाई. देन ही बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट इन साउथ अफ्रीकन हिस्ट्री. तो इन्होंने अपने लोगों के साथ मिल करके, लोगों को जागरूक करके, अवेयर करके, और एक जो पुरानी बुरी व्यवस्था के खिलाफ इन्होंने लड़ाई लड़ी और लोगों को ये बताया कि आज़ादी के फ़ायदे क्या हैं, हमारे राइट्स क्या हैं, हमारे अधिकार क्या हैं. काफ़ी लंबी एक यात्रा ये इनकी आज़ादी के लिए रही, जिनको इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी के रूप में एक नाम दिया, A Long Walk to Freedom. We have picture, you can see the picture, Oliver Tambo, Walter Sisulu, Chief Luthuli, Yusuf Dadoo, Bram Fisher, Robert Sobukwe. These are the comrades, इनके जो साथी थे स्ट्रगल फॉर फ्रीडम में, इनको इन्होंने याद किया अपने ऑटोबायोग्राफी में. So now let's go with the text with reading. Remaining part. I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifices had wrought. The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. All of us will spend many years, if not generations, recovering from that profound hurt. But the decades of oppression and brutality had another unintended effect, and that was that it produced the Oliver Tambos, the Walter Sislus, the Chief Luthulis, the Yusuf Dadoos, the Bram Fishers, the Robert Sobukwes of our time. Men of such extraordinary courage, wisdom and generosity that their like never be known again. Perhaps it requires such depths of oppression to create such heights of character. My country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil, but I have always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamonds.
It is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. Time and again, I have seen men and women risk and give their lives for an idea. I have seen men stand up to attacks and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination. I learned that courage was not the absence of fear, but the triumph over it. The brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquers that fear. No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion. People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love. For love comes more naturally to the human heart than its opposite. Even in the grimmest times in prison, when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards, perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going. Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. In life, every man has twin obligations: obligations to his family, to his parents, to his wife and children, and he has an obligation to his people, his community, his country. In a civil and human society, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclinations and abilities. But in a country like South Africa, it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of those obligations. In South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated. In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion. I did not in the beginning choose to place my people above my family, but in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, a brother, father, and a husband. I was not born with a hunger to be free. I was born free, free in every way that I could know. Free to run in the fields near my mother's hut, free to swim in the clear stream that ran through my village, free to roast mealies under the stars and ride the broad backs of slow moving bulls. As long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe, I was not troubled by the laws of a man or God. It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion, when I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it. At first, as a student, I wanted freedom only for myself.
the transitory freedoms of being able to stay out at night, read what I pleased, and go where I choose. Later, as a young man in Johannesburg, I yearned for the basic and honorable freedoms of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life. Now coming to the text again with explanation. I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifices had wrought. His remembering his comrades, his fellows, वो अपने साथियों को याद कर रहे हैं जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, the 6 people, उनके सैक्रिफाइस को, उनके त्याग को याद कर रहे हैं, उनके कुर्बानी को याद कर रहे हैं और मुझे दर्द हुआ, आई वाज पेन, कि मैं उनका धन्यवाद नहीं कर पाया। जो दिन आज हमने देखा है, जिस दिन के लिए हमने लड़ाई लड़ी थी, लेकिन आज वो इस दिन को देखने के लिए दे ऑल आर नॉट अलाइव टुडे, सो ही इज थैंकिंग देम। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड, जो अपार्थाइड की जो नीति थी, रंग भेद की जो नीति थी, क्रिएटेड, उसने एक गहरा लास्टिंग वुंड, एक घाव छोड़ दिया था इन माई कंट्री, मेरे देश पर, एंड माई पीपल, मेरे लोगों पर। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स, हम सभी कई साल बिताएंगे, इफ नॉट जनरेशन, जो आने वाली जो पीढ़ियां हैं, रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, उससे रिकवरी होने में, उससे उबर पाने में अभी काफ़ी समय लगेगा, जो हमें हर्ट हुआ था, प्रोफाउंड हर्ट, गहरा जो चोट हमें लगी थी, गहरी चोट, उससे उबरने में अभी टाइम लगेगा। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन, ऑपरेशन शोषण, जितने भी दशक हमारा शोषण हुआ, एंड ब्रुटैलिटी, जो निर्दयता हमारे साथ बरती गई, बुरा व्यवहार किया गया, हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट, एंड दैट was that it produced the Oliver Tambos. इतना ज़्यादा प्रताड़ना सहने के बाद ही इसका इतना असर, इतना प्रभाव हुआ कि ऐसे लोग निकल करके सामने आए। ओलिवर टैम्बोज, वाल्टर सिस्लुस, चीफ लुथलिस, यूसुफ डैडूज, ब्रैम फिशर्स, रॉबर्ट सुबुक्वेज, तो ये सब हमारे टाइम के रेवोल्यूशनरी थे। मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज, इनके अंदर एक असाधारण साहस था, बुद्धिमानी थी, and simplicity, generosity, दया भाव, their like never be known again, ऐसे लोग शायद कभी दोबारा इस धरती पर आ पाएं। तो आज वो उन सभी लोगों को याद कर रहे हैं अपनी स्पीच के साथ साथ, इस इनॉग्रेशन डे में अपने इन साथियों को, वो कॉमरेड्स को याद कर रहे हैं। Perhaps it requires such depths of operations to create such heights of character. Heights of character, ऐसे चरित्र वाले लोग जब जन्म लेते हैं, उसका कारण शायद यही होता है कि जिन्होंने जितना ऑपरेशन या अत्याचार सहा हो, तब जाकर के ऐसे लोग, ऐसे कैरेक्टर निकल के सामने आते हैं। माई कंट्री इज रिच विद मिनरल्स, इन द मिनरल्स, खनिज लवण, जो भी हमारे मिनरल्स में, बहुत, मेरा कंट्री बहुत, मेरा देश बहुत अमीर है। जेम्स, इतने यहाँ रत्न हैं, लाइव बीनीथ इट्स सोइल, नीचे पड़े हुए हैं, इस धरती के नीचे, मिट्टी के नीचे दबे पड़े हैं, मेरी धरती बहुत धनवान है। बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट, मुझे पता है, मैं जानता हूं जैसे हमेशा से ही, इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ, जो इसकी सबसे बड़ी संपत्ति है, क्या है? इट्स पीपल, इसके लोग, इस धरती के जो लोग हैं, ये सबसे बड़ी इसकी संपत्ति है। फाइनर, जो बहुत अच्छे हैं, ट्रू और सच्चे हैं, देन द प्योरेस्ट डायमंड्स, एक शुद्ध हीरे से भी ज़्यादा शुद्ध यहाँ के लोग हैं। तो लोगों के लिए मेटाफर के रूप में जो यूज़ किया हुआ है, डायमंड, हीरा। इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल, में ये जो मेरे साथी थे मेरे स्ट्रगल में, मेरे संघर्ष में, दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज, जिनसे ही मैंने सीखा मतलब साहस का, करेज क्या होता है। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन men and women risk their lives for an idea. समय में जो मैंने देखा, पुरुषों ने और औरतों ने जो रिस्क लिया, अपने जीवन का जो जोखिम उठाया एक आइडिया के लिए। सो व्हाट इज द आइडिया? आइडिया ऑफ फ्रीडम, आज़ादी का एक विचार, आइडिया ऑफ फ्रीडम।
I have seen men stand up, attacks and torture without breaking. मैंने देखा पुरुषों को अटैक सहते हुए, जुल्म सहते हुए, टॉर्चर, प्रताड़ना सहते हुए, बिना टूटे, विदाउट ब्रेकिंग, शोइंग ए स्ट्रेंथ, अपनी ताकत को दिखाते हुए, एंड रेजिलियंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, एक ऐसा दृश्य जो मैंने देखा जिसको जो इमेजिनेशन से परे है, जो कल्पना से परे, एक ऐसी चीज जो एहसास हुआ इस दौरान, इस ऑपरेशन के दौरान। आई लर्न दैट करेज, मैंने सीखा साहस क्या होता है। वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, साहस वो नहीं जो डर की अनुपस्थिति में हो, बट लेकिन द ट्रायम्फ ओवर इट, इस पर ट्रायम्फ जीत पा सके, डर पर, वही साहस होता है। द ब्रेव मैन इज नॉट ही, बहादुर वो नहीं है। हु डज नॉट फील अफ्रेड, जो डरता नहीं है उसे बहादुर नहीं कहते हैं, बट ही वह होता है हु कनकर्स दैट फियर, जो उस फियर पर, उस डर पर जीत पाता है। तो डर पर जिसने जीत पाई वही साहसी कहलाता है, according to Nelson Mandela. So dear learners, the text we have gone through is all about the oppression, the torture that tells the story about the brave men, brave comrades of Nelson Mandela who were true witness of the courageous task. तो इसमें कहते हैं कि साहसी, करेज की जब बात करते हैं, इज टॉकिंग अबाउट करेज. करेज इज नॉट दैट एब्सेंस ऑफ फियर बट कनकर्स ओवर द फियर, जो डर पर जीत पाता है उसे ही साहसी कहते हैं और वही साहस को बताता है. सो इट्स ऑल अबाउट द करेज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ oppression. No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion. No one is born hating another person. कोई भी पैदा नहीं होता दूसरे को नफरत करने के लिए, क्योंकि बिकॉज चाहे उसका कलर जो भी हो, गोरा हो, काला हो, ब्लैक हो, वाइट हो, और इस बैकग्राउंड या उसका कोई भी बैकग्राउंड हो, किसी भी पृष्ठभूमि से हो या किसी भी रिलीजन से, किसी भी धर्म से हो, कोई भी दूसरे को नफरत करने के लिए पैदा नहीं होता है. पीपल मस्ट लर्न टू हेट, लोग सीखें, नफरत करना भी सीखें. एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट, अगर वे सीखते हैं नफरत करना, हेट करना, दे कैन बी टॉट टू लव, उनको प्रेम करना, प्यार करना भी सिखाया जा सकता है. फॉर लव कम्स मोर नेचुरली, क्योंकि जो लव है, जो प्रेम है, ये नेचुरली, प्राकृतिक रूप से आता है, अपने आप आता है, स्वतः ही आता है टू द ह्यूमन, मनुष्यों में, ह्यूमन हार्ट में, मनुष्य के हृदय में. देन इट्स अपोजिट. व्हाट इज अपोजिट? हेट. हेट की बात कर रहे हैं कि हेट से ज्यादा जो लव है ये पहले फील होता है किसी भी इंसान को. इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन व्हेन माय कॉमरेड्स एंड आई वर पुश्ड to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards, perhaps just for a second, but it was enough to assure me and keep me going. जो हमारे बुरे दिन थे, प्रताड़ना वाले दिन थे, प्रिजन में, जेल में, when my comrades, मेरे जो साथी थे, and I were pushed to our limits, pushed to our limits, हमें घोर शोषण किया गया, हमारे साथ प्रताड़ना की गई, सजा दी गई और हमें जेलों के अंदर जो पुश किया गया, धकेला गया, उसकी वो बात कर रहे हैं. वहां भी आई वुड सी, मैंने क्या देखा, क्या देखता हूं? ग्लिमर, एक चमक, ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता की. उस जेल में भी मुझे मानवता दिखी कहीं. इन वन ऑफ द गार्ड्स, उनमें से जो एक गार्ड था, एक सिपाही था, उसमें मुझे एक मानवता दिखी. शायद परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकेंड, चाहे वो सेकेंड के लिए हो, कुछ क्षण के लिए हो, बट इट वॉज इनफ, ये पर्याप्त था टू रीएश्योर, दोबारा से निश्चित करने के लिए अपने आप को, एंड कीप मी गोइंग, आगे बढ़ने के लिए. और मुझे थोड़ी सी उम्मीद की किरण वहाँ भी दिखी कि हाँ, कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटी एग्जिस्ट करती है, अभी भी मानवता इंसान के अंदर बची हुई है, और इसी चीज़ ने मुझे एनकरेज किया आगे बढ़ने के लिए.
मैंस गुडनेस इज अ फ्लेम, इंसान की अच्छाई एक ऐसी लौ की तरह होती है, फ्लेम की तरह होती है, दैट कैन बी हिडन, जो छुप सकती है, बट नेवर एक्सटिंग्विश, एक्सटिंग्विश माने बुझना, बुझने से मतलब है इंसान के अंदर जो अच्छाई की एक लौ है, कहीं ना कहीं हर इंसान में कुछ ना कुछ गुडनेस, अच्छाई जरूर होती है, लेकिन जो कभी बुझती नहीं है, हिडन होती है, छुपी होती है, लेकिन कभी बुझती नहीं है। तो इन द प्रिजन ही सॉ अ गार्ड, उसके अंदर उनको एक काइंडनेस दिखी, ह्यूमैनिटी दिखी, तो उसने उनको आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर किया, प्रेरित किया। In a civil and human society, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclination and abilities. Obligations की बात कर रहे हैं मंडेला, obligation is बंधन, या आप इसको जिम्मेदारी, रेस्पॉन्सिबिलिटी भी कह सकते हैं। तो सिविल सोसाइटी, ह्यूमन सोसाइटी, मानव सभ्यता में, मानव समाज में हम सभी ऑब्लिगेशंस में बंधे होते हैं, बंधनों में बंधे होते हैं, हमारे अंदर कुछ जिम्मेदारियां हैं, अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लाइनेशंस एंड एबिलिटीज, अपनी अपनी सबकी योग्यता के अनुसार बंधन होते हैं। बट इन ए कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, एक ऐसे देश के बारे में बात कर रहे हैं, साउथ अफ्रीका जैसे देश में, इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, बिल्कुल असंभव था एक आदमी के लिए ऑफ माई बर्थ, जिसने यहाँ जन्म लिया हो एज ए ब्लैक एंड कलर, अश्वेत रूप में, टू फुलफिल बोथ दोज ऑब्लिगेशन, मैं दोनों ऑब्लिगेशंस को नहीं एक साथ निभा सकता था। ऑब्लिगेशंस क्या है? इन साउथ अफ्रीका ए मैन ऑफ कलर who attempted to live as a human being was punished and isolated. अगर मैं अपनी जिम्मेदारियों को निभाऊंगा साउथ अफ्रीका में, ऐसे धरती पर, ऐसे देश में, तो हम जैसे अश्वेत लोगों को पनिश किया जाता था और उसके बाद आइसोलेट, अलग रखा जाता था। इन साउथ अफ्रीका में ए मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी, अगर कोई अपना कर्तव्य निभाने की कोशिश करता है, अपनी ड्यूटी निभाने की कोशिश करता है टू हिज पीपल, अपने लोगों के प्रति, समाज के प्रति, समाज सेवा समझ लीजिए, समाज के प्रति, वॉज इनएविटेबली रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली, उसको उसके फैमिली से बिल्कुल बेदखल कर दिया जाता था, एंड हिज होम, उसके घर से भी, एंड वॉज फोर्स्ड टू लिव ए लाइफ अपार्ट, एक अकेला जीवन जीने के लिए उसको मजबूर कर दिया जाता था, बिल्कुल आइसोलेट कर दिया जाता था, अलग कर दिया जाता था। इट लाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी एंड रेबिलियन, रेबिलियन के रूप में, विद्रोही के रूप में उसको घोषित कर दिया जाता था, विद्रोही। तो ऐसा जीवन वहां पर उन्होंने जिया, फील किया कि कैसे हमारी आजादी को कर्टेल किया हुआ है, बॉन्डेज में रखा हुआ है। I did not in the beginning choose to place my people above my family. मैंने अपने लोगों को शुरुआत में फैमिली से ऊपर नहीं रखा था, बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, जब मैंने लोगों की सेवा शुरू की, सेवा करनी, आई फाउंड दैट, मैंने क्या पाया, आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम माई फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशंस एज ए सन। तो मुझे फील हुआ कि मैं अयोग्य हो रहा हूँ अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारी, एज ए सन, एज ए ब्रदर, एज ए फादर, एज ए हस्बैंड। तो ये जो रोल है एक मैन के, एक आदमी के परिवार के लिए, इनको पूरा करने में, फुलफिल करने में मुझे एक रुकावट सी महसूस हुई। आई वॉज नॉट बॉर्न विद हंगर टू बी फ्री, मैं आज़ादी पाने के लिए भूखा नहीं था, ना ही मेरा जन्म ऐसा हुआ था। आई वॉज बॉर्न फ्री, मैं आज़ाद ही पैदा हुआ था, फ्री इन एवरीवे, हर तरीके से मैं आज़ाद था। दैट आई कुड नो, जितना मैं जानता हूँ। फ्री टू रन, मैं दौड़ता था इन द फील्ड जब मैं छोटा था, नियर माई मदर्स हट, हमारी छोटी सी झोपड़ी थी, बिकॉज वी वर और फ्रॉम फार्मर बैकग्राउंड। फ्री टू स्विम, मैं तैरने के लिए आज़ाद था इन क्लियर स्ट्रीम, एक साफ सी धारा में, नदी में, दैट रैन थ्रू माई विलेज, जो मेरे गांव से होकर के जाती थी, उसमें मैं नहाता था, तैरता था। फ्री टू रोस्ट मिलीज अंडर द स्टार्स, रोस्ट करता था स्टार्स के नीचे, एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, और हमारे पास जो बैल थे उनके ऊपर बैठ करके मैं जाता था, बैलों की सवारी करता था। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर, मैं अपने पिता का कहना मानता था, आज्ञाकारी था। एंड अबाइडेड बाय, मैंने स्वीकार किया कस्टम्स को, रीति रिवाज को, ऑफ माई ट्राइब, मैं जिस जनजाति से आता था,
मैंने उसके सारे रीति रिवाज निभाए। आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड, मैं इंसान या भगवान के बनाए गए नियमों से कभी भी परेशान नहीं हुआ। इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगेन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन। लेटर ऑन मैंने जाना कि मेरे जो लड़कपन की जो आज़ादी थी वो एक केवल क्या था, एक इल्यूजन था, एक भ्रम था। व्हेन आई डिस्कवर्ड एज ए यंग मैन दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, आदमी के रूप में जब मैंने एहसास किया, महसूस किया, मेरी आज़ादी पहले ही मुझसे ली जा चुकी थी। दैट आई बिगेन टू हंगर फॉर इट, और उसके बाद ही मेरे अंदर भूख बढ़ी इस आज़ादी को पाने के लिए। एट फर्स्ट एज ए स्टूडेंट आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ। एज ए स्टूडेंट मैं केवल अपने लिए आज़ादी चाहता था। द ट्रांजिटरी फ्रीडम्स ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, ऐसी आज़ादी जिसमें मैं घर के बाहर रात भी रह सकूं, रीड पढ़ सकूं, व्हाट आई प्लीज, जो कुछ मुझे अच्छा लगता था, एंड गो वेयर आई चूज, और मैं वहाँ जा सकूं जहाँ मुझे पसंद हो। लेटर बाद में एज ए यंग मैन जब मैं बड़ा हुआ जोहानिसबर्ग में, इट्स ऑल्सो सिटी इन साउथ अफ्रीका, आई यर्न फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स। मैंने फिर एक बेसिक आधारभूत जो आज़ादी चाहिए होती है, सम्मानजनक जो आज़ादी, उसके लिए मैंने प्रयास किया ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, जितना मेरे अंदर पोटेंशियल, जो अंदर ताकत थी, जो क्षमता थी, ऑफ अर्निंग माई कीप, ऑफ मैरिंग, उसके बाद मैंने अर्निंग शुरू की, शादी की, एंड हैविंग ए फैमिली, मेरा एक परिवार हुआ। द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन ए लॉफुल लाइफ। तो लॉफुल लाइफ में फ्रीडम जो थी, मुझे पता था जो मेरी फ्रीडम है वो किस ओर जा रही है। सो ग्रेजुअली at every stage of life, childhood, boyhood, as a man, he was feeling that the freedom is already taken from me. So this is all about the text for the day. The video will be continued in next session for the summary, for the vocabulary drill and homework question answers. Dear learners, we have gone through all the aspects of the lesson. We have gone through introduction of the lesson. We have gone through the key points in the lesson about the writer. The term autobiography. What is autobiography? We have gone through the text with the explanation. So do practice of question answers. Will be coming in next session. We will do all those activities, vocabulary drill. We will do questions with explanation. So see you soon in next video. Till then, bye bye.